हैमिंग नेटवर्क है क्या? है तो चलो, हैमिंग नेटवर्क बाद में पढ़ा देंगे। आज हम लर्निंग पढ़ाएंगे। ओके, ये बोल्ट्जमान मशीन और हैमिंग नेटवर्क, ये सेकेंड यूनिट में है एक्चुअली, तो ये हम फिर अलग से पढ़ा देंगे इसके लर्निंग के बाद। ओके, स्टूडेंट्स। ओके सर, ओके। So I start with the learning in the neural networks. Learning is a procedure for modifying the weights and biases of the network. It is also called the training algorithm. And this learning algorithm forces the network to adapt as per the changes in the output and input. Okay, changes in the its structure, that is comprised of the change in the weights, such as learning with supervision and learning without supervision. So actually the learning in actual condition is something more complex than the simplification represented by these rules. And supervised learning, in supervised learning, input output data set, that is training data set, is provided to the network, and this input is applied to the network. The output is compared with the actual target output, and when there is something error, then by utilizing that error and designing some functions of based on the errors, we use the learning rules which adjust the weights and biases in the network. And as soon as the network output comes closer to the target, the learning is completed. Okay, so it is clear basic about the learning. So learning method tries to minimize the current errors of all processing elements. Okay, so this is the error reduction is created by modifying the weights until an acceptable global error is achieved. Acceptable global error means suppose error should be within 2% or 5%. So in that case we accept that okay, this is sufficient, and we assume that the output has been achieved, proper output has been achieved. Okay, so here a simplified diagram is shown. I will show you by a whiteboard. By suppose that this is a system output. This is the system. Actual system, you know. This is the actual system, and this is the, we are trying to determine the model. Okay, this is the model of the system. Okay, NN model, we want to design the NN model of the system. तो यहाँ पे we are using the output of the system and input given to the actual system. We are utilizing these two input and output data sets for designing the neural network. Okay, and which will actually exactly replicate the system, actual system. Okay, when it is properly trained in the given data input and output data range. Okay, so what will happen here?
So here what we have given, one input and one output from the system. Okay, this is X and this is system output. Okay, in previous diagram you have shown here Y system and input X. Okay, then what will happen here, input X and Y is given as the network to the network, but actually what is happening here, what is happening inside this block, there is something, error is coming out from this output, and actually what is happening, this error, actual error and the error between this and some function of this error, okay, will change the weights of the weight of the system, that is called the learning. ठीक है, तो when this error is 0, okay, then the model output will represent the system output. Means what is happening here, this is inside the block. Okay, understand, this is n and this is nn model, trainable model. Okay, तो ये समझ में आ गया आपको कि देखने में तो हमको ये लग रहा है कि ये सिस्टम इनपुट और आउटपुट दिए और डायरेक्टली ये आउटपुट दे दिया, इट हैज गिवन द न्यूरल नेटवर्क मॉडल हैज गिवन द आउटपुट. ओके, ठीक है, तो चाहे फिर इफ द न्यूरल नेटवर्क मॉडल इज सेम एज it has replicated or it is same like the neural network, same as the actual system, then the ys will be equal to ym. Okay, it will actually will be similar like ys equal to ym. Okay, suppose that some actual output of the system is targeting like this is ym, ys, so then the model output may be like this is, it may be something like this. So okay, so it will actually represent or track the system when it is properly trained. Okay, can you understand this? Students, please respond. ये जो सिस्टम है, यहाँ पे आपने देखा क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? इनपुट एंड आउटपुट इज यूज्ड टू ट्रेन द मॉडल. यहाँ से जब ट्रेन हो जाएगा तो जो एनएन मॉडल का आउटपुट है वो लगभग सिस्टम आउटपुट के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो अगर सिस्टम आउटपुट इज बाय रिप्रेजेंटेड बाय रेड and the model output is represented by ym, then क्या होगा, after training ym equal to ys. Okay, ym equal to ys, system output, ठीक है, and model output, it will be same. What is happening inside the this block, here there is a two inputs and one output in this block NN model. Actually what is happening inside this block, there is a neural network. Okay, and this actual system output is going to this summing block, subtraction block,
and there is an error is generated, and this is the output of the neural network. Okay, and the output of the neural network is then used to generate the error between the actual model, actual system output and the model system. This is ym. Okay, and this is also the ym. Okay, then this is a function of the error. Suppose that this can be 1 upon 2 e square. E square is error भी इसको बोलते हैं. It can be 1 upon 2 e square. Okay, so this is a some function of error, and and there may be also some gain of the error. जैसे PID है, ऐसा PID भी तो यूज कर सकते हैं. Okay, so this is a, suppose that there is a gain. Okay, and the weights are trained, weights of the neural network is trained according to this. तो ये अगर समझ गए हो आप तो once respond me. यस सर, समझ गया. ओके, तो यहाँ पे वही हुआ कि द सिस्टम, एक्चुअल सिस्टम आउटपुट कमिंग हियर इज दिस, मीन्स एक्चुअल सिस्टम आउटपुट जो होना चाहिए दैट इज द टारगेट आउटपुट. ओके, टी, एंड हियर द मॉडल आउटपुट इज वाई, देन द एरर इज हियर and that is used to train the weights and biases of the system. Okay, so this is the supervised learning. In supervised learning we provide the information, means what should be the output, but whenever there is the system is moving, means deviating from the actual target output, there is an error and this will change the appropriate system. Suppose there are n set of input and output data sets. Okay, first set is x1 वैल्यू है अगर 1 और 2 है और टारगेट आउटपुट 5 है. सपोज सेकेंड डेटा सेट है 3, 5, उस पे जो टारगेट वैल्यू होनी चाहिए उस 10 होनी चाहिए, और जब इनपुट हम देते हैं 7 एंड 9 देन उसकी आउटपुट होनी चाहिए सपोज 12. तो दिस ऑल टुगेदर आर द इनपुट आउटपुट डेटा सेट्स, वन सेट ऑफ input and one set of target output, second set of inputs and second set of target output. Okay, so there are different learning rules: Wittrow-Hoff gradient descent, delta learning rule, back propagation rule, Cohen-Grossberg learning rule, adaptive conjugate gradient model of Adele and Hung. So I will discuss some of them, but actually whenever some classification is asked from you in the questions, you have to give all these classifications, and when you are asked to specific rules which are coming into the syllabus, you will have to give the answer. Okay, during the classification you have to give all the classifications. Okay, so first is the Wittrow-Hoff learning rule. Okay, so Wittrow-Hoff are two scientists who have introduced this rule, and in 1960. And here suppose there is a target output, desired output di in the ith layer. Okay, suppose that first layer is called the ith layer, second is the j, and third is k. So in the ith layer the desired output should be suppose there is only one neuron and only one network is there, only one layer is used. Okay, so what is the desired output? Di, and actual system output is oi. Okay, so means the neural network output is oi and desired output di, and there is an error between these two variables. Okay, so desired output is from the actual system and oi is from the neural network system. Okay, then some constant is there which increases the rate of acceleration
in the training of weights. Suppose that if we increase this value and this is multiplication of the inputs, okay. Suppose that in first layer n neurons are there, so this I1, I2, I3, I4, DI1, OI1, DI2, OI2, means there will be n number of inputs and n number of outputs for suppose n number of neurons are there. तो ये क्या होंगी, ऐसे एरर सभी के लिए निकलेंगी, हर एक न्यूरॉन के लिए एक एरर निकलेगी, ओके. एंड दिस इज द इनपुट वेक्टर, ओके. सो दिस इनपुट वेक्टर इज यूटिलाइज्ड फॉर during the training of all the neurons, okay, during the multi-layer. Suppose here only one neuron is used, then this give error into a constant and a input vector, okay. So what is the change in the what should be the change in the error? Input vector multiplied by a constant and desired the error between desired and neural network output, okay. This is the WI, del WI. So the change in now here you can see that the output of the model neural network model is fnet I. Here what we have used, the output of the neural network before the activation function is used. Here this Wiedrohoff learning rule says that after this summing point the activation function will come, but in the Wiedrohoff learning rule we don't use the output of the system after activation function. We use the output of the neural network before the activation function, okay. Here, so here the output which is utilized for generating the error is actually the net output. Net output, that is the summation of weights into input vector, okay, plus bias. If bias is 0, then here will be 0, okay. So net output is multiplication of weight matrices into input vector. Understand? यहां तक समझ में आ गया आपको? हाँ सर. चलो भाई, कोई दिक्कत हो इसमें तो पूछ लो भाई. अभय सिंह छोड़ क्यों रहे हैं? दोबारा ज्वाइन करेंगे क्या? ओके, सो तो ये तो यहां तक समझ में आ गया होगा डेफिनेटली. देयर इज नो एनी प्रॉब्लम. Take here example of this system. Suppose there is a initialized vector. Initial vector should be there. जब हम ट्रेनिंग करते हैं, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कुछ तो इनिशियल वेक्टर होना चाहिए, कि जैसे कि हम PLL यूज करते हैं पावर सिस्टम में, तो देयर शुड बी सम सर्टेन सिस्टम फ्रीक्वेंसी एट विच द PLL इज वर्किंग. ऐसे ही किसी सिस्टम के लिए एक सेट पॉइंट्स होते हैं. तो यहाँ पे एक सेट पैरामीटर वेट वेक्टर इज यूज्ड. तो यहाँ पे जो नेट आउटपुट है फॉर वन न्यूरॉन, द नेट आउटपुट इज गिवन बाय द ट्रांसपोज ऑफ द वेट वेक्टर, कॉलम वेट वेक्टर. दिस इज कॉलम वेक्टर एंड दिस इज द रो वेक्टर, ओके. देन द रो वेक्टर column vector of the inputs and row vector from the initialization vector, okay. Then what will happen here? Net output is 3. This net output 3 is the neural network output, okay. So by the Wiedrohoff rule, what will here? Suppose that we are using the this constant eta equal to 1. Then the desired output should be here it is given desired output is 1 minus 1 and 1.
ओके, 1 -1 एंड 1 क्या है, इसमें एक डिजायर्ड आउटपुट है कि 3 आउटपुट्स हो गए हैं, ठीक है। देन इन दैट कंडीशन फर्स्ट न्यूरॉन के लिए क्या होगा, आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट 1 है, देन 1 - 3, ओके। तो ये क्या होगा, -2 4 -3, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सो द चेंज इन द वेट इज दिस, so the weight after the first iteration is the initial weight vector plus the change in the weight vector, that is -1 3 -3 is the final weight. Initial weight was 1 -1 0 0.5. There are 4 inputs, so there will be 4 weights, okay. So these 4 weights have been updated based on this Woodrow-Hopf rule, okay. Is it clear? So now the delta learning rule, एक हेप्स रूल होता है, हेप्स रूल का वेरिएशन है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द सिंपल आइडिया ऑफ मॉडिफाइंग द वेट्स ऑफ इनपुट कनेक्शंस, ओके। तो यहाँ पे जो आउटपुट डिफरेंस होता है, डेल्टा, डिफरेंस बिटवीन द डिजायर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट ऑफ द सिस्टम, दिस इज कॉल्ड द डेल्टा, ओके। देन द जो मीन स्क्वायर्ड एरर है उसको कम करे, इस टाइप से हम वेट्स को चेंज करते हैं, सो दैट द मीन स्क्वायर्ड एरर ऑफ द नेटवर्क इज reduced, okay. In this process, the back propagating the network error means, back propagation means the depending on the errors in the last layer, the weights of the previous one layer is set, okay, and then the outputs at the previous layer is calculated, and होते होते वो जो इनपुट लेयर होती है वहां तक के वेट्स में चेंज होने लगता है, मींस द एरर इन द आउटपुट इज प्रोपेगेटेड टू चेंज द वेट वेक्टर्स, वेट मैट्रिसेस इन द इनपुट साइड, ओके। So this is the back propagating the network errors. So delta learning rule is applicable for supervised training of neural networks and valid for continuous activation function. What is the continuous activation function? There is no any non-linearity, only whatever the input we are giving that will achieved in the output, and there is no any saturation, like it will give the output only +1 and -1 and all, okay. So this is the continuous activation function, means directly the output from the summing point and summing point of the input multiplied by weight plus bias will be used as the network output for generating this square error, okay. Here this mean square error means क्या होगा, उसके जितने सेट्स हैं, एक लेयर में जितने आउटपुट्स हैं और जितने इनपुट्स डिजायर्ड आउटपुट होंगे, डिजायर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल नेटवर्क आउटपुट एट दैट न्यूरॉन विल बी सम्ड टुगेदर, ये उसका एरर को सम किया जाएगा। आपको हम एक और दिखा देते हैं कि ये कैसा होता है। ये एक पी पैटर्न है, नंबर ऑफ पी पैटर्न्स आर देयर, सपोज दैट पहले एक 10 सेकेंड पहले डिजायर्ड आउटपुट 1 है और एक्चुअल आउटपुट न्यूरल नेटवर्क का आउटपुट -1 है, फिर कुछ देर बाद एक सैंपल बाद वो चेंज हो गया, वो 2 हो गया और न्यूरल नेटवर्क, तो ये डिफरेंट पैटर्न्स है, मतलब पूरा पैटर्न P है, मतलब P = 1 2 3 4, तो जितने पैटर्न उसमें आएंगे सही पैटर्न्स को ऐड करता जाएगा उसमें, और उसका जो एरर होगा एरर का स्क्वायर करके तो ये निकलेगा, ओके।
So then what we do, this is the square error, and a square error is used for training the weights here. Okay, then what is the change in the weight? Change in the weight is given according to the delta rule. Okay, delta rule means change in the mean square error into a constant. Okay, here you simply know that the output for linear continuous activation function f net is equal to the net के बराबर ही होगा, क्योंकि देयर इज नो एनी एक्टिवेशन फंक्शन. सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू द weight matrix into input vector. Okay, what you see now here, delta E is the derivative of this function multiplied by the error. ये डिफाइन किया हुआ है, मीन्स दिस इज द डेफिनेशन. दिस इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम दिस प्रीवियस इक्वेशंस. इस प्रीवियस इक्वेशन से डिराइव्ड नहीं है, ये एक डेफिनेशन है कि डेल्टा ई इज डिफाइंड एज द एरर मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द नेट आउटपुट. ओके, यहाँ पे कहीं पे डायग्राम बना होगा. ये एफ नेट है, जो नेट यहाँ आएगा उसका डेरिवेटिव है, एंड देन एरर इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ दिस, एंड नाउ ए कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड. प्रीवियस वाले में क्या हो रहा था कि हम यहाँ पे ये फंक्शन को नहीं ले रहे थे, यहीं से डायरेक्टली हम आउटपुट ले रहे थे. ओके, यहाँ से ये डायरेक्टली हम आउटपुट ले रहे थे और एक टारगेट डिजायर्ड आउटपुट जो है उसको हम लेके और एरर बना रहे थे. ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिवेशन फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव लेंगे और जो एक्टिवेशन फंक्शन के बाद का जो आउटपुट है उसकी एरर लेंगे. ओके, एंड देन वी मल्टीप्लाई दिस एरर इनटू डेरिवेटिव ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन. Then we multiply with a constant and then multiply with input vector. This will provide the change in the weights. Okay, then change in the weights is equal to this. This is given by this, the difference of target and desired output and neural network output and derivative of the activation function. Okay, so now here the component of gradient vectors are used. तो यहाँ पे एक ये फंक्शन निकला ईटा इंटू ई आई एफ डैश नेट इंटू एक्स इनपुट वेक्टर. ओके, कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर? just for a time being you leave this equation. Okay, you only see this and this equation and this equation, because this is related 4.49 is given for this. So replace directly from here this net f net into x. This is the input vector. So here you can see the delta learning rule is given. ये समझ में आ रहा है आपको ये कैसे काम कर रहा है? I will compare this with simply what I have told you earlier. इसको देखो, यहाँ पे यहाँ सिंपल है. यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन के पहले का आउटपुट लिया है डिजायर्ड आउटपुट से, सीधा एरर निकाला है, और आफ्टर गेटिंग दिस एरर ईटा इट इज मल्टीप्लाइड एंड इनपुट वेक्टर एक्स इज मल्टीप्लाइड एंड द चेंज इन द वेट इज रिसीव्ड देयर. ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिया. ये अलग अलग रूल्स हैं, तो ये ऐसा क्यों लिया है वो तो रिसर्च का एक प्रॉब्लम है, एंड उसको आप जब डिटेल्स स्टडी करेंगे तो उनका क्या ऑब्जेक्टिव था इसके पीछे. तो यहाँ पे क्या होगा, डिजायर जो एरर है, एरर मल्टीप्लाइड बाय दिस डेरिवेटिव ऑफ द
activation function, and then it is again multiplied with the rate. Means if we increase this value, that this will increase. मीन्स जल्दी हम फास्ट उसको कन्वर्जेंस करना चाहते हैं, फास्ट उसमें ट्रेनिंग प्रोसेस करना चाहते हैं, तो हमें ये रेट बढ़ाना पड़ेगा. ओके, दिस वैल्यू. तो यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे. यू कैन सी हियर you can see that initial vector is given, input vectors are given. सपोज दैट पहले एक था, वही चीज बाद में एक सैंपल बाद -2 हो गया, दूसरे सैंपल बाद 0 हो गया, अगले सैंपल बाद -1 हो गया. ऐसे ही दूसरा इनपुट जो है पहले क्या था, 0 है. ठीक, ये तो वेट वेक्टर है. ये सभी इनपुट्स के लिए वेट वेक्टर टाइम के साथ बदलेगा नहीं. ठीक है, जब तक हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे. In case we are training the neural network, then only it will change. It will not change with the time. While these are the input vectors. इनपुट वेक्टर मतलब टाइम के साथ चेंज होगा. एक सैंपल बाद ये दूसरा इनपुट क्या है, x2 0 1.5 और ये चेंज हो रहा है. ओके, अब डिजायर्ड आउटपुट हमारा क्या हुआ, डिजायर्ड आउटपुट -1 2 -1 एंड 1 है सपोज. ओके, तो यहाँ पे एक हम एफ नेट एज्यूम करते हैं कि एफ नेट इजकल टू 1 - o². ये एक एक्टिवेशन फंक्शन इसका लिया हुआ है कि मतलब इसमें डिफाइन ही किया हुआ है एक्टिवेशन फंक्शन ये. ओके, तो एफ डैश नेट क्या होगा, एफ डैश नेट इज रिलेटेड टू दिस. ओके, तो यहाँ पे इसने कैलकुलेट कर लिया, एफ डैश नेट कैलकुलेट किया कि 1/2 × 1 - o². ओके, ये समझ में आ रहा है क्या? आउटपुट जो है, ये आउटपुट क्या होगा, एफ नेट. ओके, तो ये एफ नेट के बराबर आउटपुट होगा और यहाँ पे 0.848 आया सपोज दैट आउटपुट ऑफ द सिस्टम. ओके, तो ये एफ डैश नेट क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस. तो करो उसके टाइम के साथ में डेरिवेटिव करने पे इसका क्या आएगा, मतलब ये करोगे जब तो समझ में आ जाएगा. इसको एक्सपोनेंशियल करोगे तो 1 इसका अलग डेरिवेटिव प्लस वो करोगे तो एक तरह से यही फंक्शन आएगा, डेरिवेटिव इक्वल टू 1/2 1 - एफ नेट द स्क्वायर. ओके, तो ये डेरिवेटिव आ गया तुम्हारा. अब डेरिवेटिव और ये वेट वेक्टर का ये मल्टीप्लिकेशन कर लो. ओके, द डिफरेंस इन द डिजायर्ड आउटपुट एक्चुअल न्यूरल नेटवर्क आउटपुट into derivative of the activation function into input vector into this. ओके, तो ये तो डेल्टा आ गया, डेल्टा डब्ल्यू वेट में जो चेंज होता है. अब वेट में जो चेंज होगा उसको हम प्रीवियस वेट के साथ ऐड कर देंगे. प्रीवियस वेट के साथ ऐड कर देंगे तो नया वेट क्या मिलेगा, न्यू वेट वेक्टर विल बी दिस. ठीक है, तो वही जो एक फर्स्ट इनपुट यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड इनपुट में W1 W2 W3 W4 जो यहाँ पे पहले कुछ और था. ओके, W1 यहाँ पे 1 - 1 0 0.5 था. अब चेंज होके W2 इन द नेक्स्ट इटरेशन में ये हो गया. अब अगर सेकेंड इटरेशन लगाओ तो सेकेंड इटरेशन में इनिशियल वेक्टर क्या हो जाएगा, ये. ओके, सेकेंड इटरेशन में इनिशियल वेक्टर ये हो जाएगा और लर्निंग रूल तो सब यही रहेंगे. तो यहाँ पे अब ये रख दो, इस वेक्टर को अब पूरा ये इक्वेशन लो यहाँ पे और इसको यहाँ पे रख दो, तो जो चेंज होगा वो फिर कैलकुलेट हो जाएगा. ओके, तब यहाँ पे नेक्स्ट वेट टोटल आउटपुट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वेट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई दिस इनपुट वेक्टर. ओके,
ये समझ में आ गया क्या? नहीं समझ में आएगा हम फिर से बताएंगे। बता दीजिए, फिर से बता दीजिए। कहाँ से? यहाँ से एग्जाम्पल 4.2 से कि ये यहाँ पूरा? अच्छा, 4.2 से। ओके, यहाँ पे एक एफ नेट दिया हुआ है, यू सी हियर। ओके, यस। x1 जो है, x1 x2 x3 means different patterns are there for the input vectors। तो यहाँ डिजायर्ड आउटपुट, सपोज यहाँ पे तीन न्यूरॉन की बात कह रहा है, ये 3 न्यूरॉन के लिए। ओके, तो पहले न्यूरॉन के लिए इसने वेट ट्रेन किया है, दूसरे न्यूरॉन्स के लिए यहाँ पे वेट वेक्टर यूज नहीं किया। देखो यहाँ पे 1 -2 0 एंड -1, केवल इसी को लिया है इसने पहले न्यूरॉन के लिए, फर्स्ट न्यूरॉन का। इसमें दूसरे न्यूरॉन भी हैं, ये तीसरे न्यूरॉन भी हैं, इसको यूज नहीं किया इसने। तो अभी हम W1 X1 की बस बात कर रहे हैं। और डिजायर्ड आउटपुट D1 क्या है? -1। ओके, तो डिजायर्ड आउटपुट इतना हम लेंगे, W1 X1 ये वेक्टर ले लेंगे। ओके, ओनली 2 वेक्टर्स वी आर कंसिडरिंग हियर। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि एफ नेट ये है, इसका डेरिवेटिव निकालो चलो तुम लोग, तो क्या निकलता है हम बताएंगे उसमें। एफ डैश निकालोगे तो क्या निकलेगा? सपोज दैट ये x है, ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में उसको डेरिवेटिव करो। करो, करके लिखो भाई, नहीं तो यहाँ से कंफ्यूजन रहेगा। करोगे तो जानते हो क्या आएगा? 1/2 इंटू 1 माइनस इसी फंक्शन का स्क्वायर आएगा। ओके, एफ नेट स्क्वायर 1/2 इंटू 1 माइनस एफ नेट स्क्वायर, इसका वो आ जाएगा डेरिवेटिव निकालोगे तो, करके चाहे देख लो। तो यहां से देखो, सबसे पहले इसने क्या निकाला है? वेट इनटू इनपुट। वेट इनटू इनपुट क्या हुआ? वेट का वेक्टर ट्रांसपोज कर लिया, जो कॉलम वेक्टर था उसको ट्रांसपोज कर लिया, इनटू इनपुट वेक्टर। ओके, पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट, चौथा इनपुट पहले न्यूरॉन में। ठीक है, सिर्फ पहले न्यूरॉन के लिए ये कर रहा है। तो फर्स्ट न्यूरॉन के लिए 1 फर्स्ट इनपुट, सेकेंड इनपुट, थर्ड इनपुट, फोर्थ इनपुट। ओके, इनपुट लेयर है ये। देन ये 2.5 आया इसका। ओके, नेट जो है आउटपुट 2.5 आया। अब 2.5 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्सपोनेंशियल 2.5। ओके, 2/1 प्लस एक्सपोनेंशियल 2.5, तो कितना आ जाएगा ये? एंड -1, वो पूरा एफ नेट से आउटपुट निकाला है, इतना आया 0.848। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम इसकी नेट की वैल्यू रखेंगे, तो ये आएगा 1/2, बता रहा हूं आपको, यहाँ पे जो एफ नेट है ये कितनी आ रही है? ये हमारा है सपोज 2/1 प्लस ई माइनस ई नेट, नेट आउटपुट का एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? -1। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे x हो जाएगा, इसको डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा? डिनोमिनेटर इनटू
नमरेटर का इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो बाद वाला 0 होगा, इंटू ये क्या हो जाएगा 2 इंटू इसका डेरिवेटिव, तो क्या होगा ये नेट इंटू इसका क्या होगा डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कितना होगा, ई नेट होता है, तो यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से इससे लोगे तो ये टोटल आएगा तुम्हारा 1/2 इंटू 1 माइनस एफ नेट का ही स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा ये आउटपुट, सॉरी ये एफ डैश नेट, ये इतना आएगा, ओके। जबकि ये एफ नेट ये फंक्शन पूरा यही है, समझ गए, तो इतना तुम्हारा ये फंक्शन बन जाएगा। अब यहाँ पे भी नेट की वैल्यू रख देंगे, जब यहाँ नेट की वैल्यू रखेंगे इसी नेट की उस फंक्शन पे, यहाँ पे क्या होगा तो देख लो, ऐसे ऐसे आएगा ये 1/2 इंटू 1 माइनस, अब यहाँ पे आया 2/1 प्लस ई नेट माइनस 1 स्क्वायर, ऐसा ये आ गया तुम्हारा एफ डैश नेट। तो ये जब आएगा तो इसको क्या करोगे, यहाँ पे नेट की वैल्यू फिर रखोगे 2.5, नेट आउटपुट कितना आ रहा है 2.5, तो 2.5 यहाँ रख दो, 2.5 रखने से क्या होगा, 2.5 रखने से इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, ये वैल्यू 0.140, ओके। अब डिजायर्ड आउटपुट, पहला डिजायर्ड आउटपुट कितना था, हमने प्रॉब्लम में देखा था यहाँ पे कि ये दिया है यहाँ डिजायर्ड आउटपुट ये होना चाहिए, तो पहले न्यूरॉन के लिए -1, तो यहाँ पे -1 को यूज कर लिया है, -1 इंटू O1 इंटू ये 0.1 लिया है, अपने सेलेक्ट कर लिया है, दिया है उसमें आप दिया है तो उसको वेल यूज कर लीजिए, अदरवाइज अपने सेलेक्ट कर लीजिए, 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। कम रेट से आप लर्निंग करना चाह रहे हैं वेट्स की, तो उसके हिसाब से आप रिड्यूस कर दीजिए। एफ डॉट नेट डेरिवेटिव, नेट एफ नेट का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे 0.140 रख दिया। अब इनटू इनपुट वेक्टर, दिस इज द इनपुट वेक्टर, ओके। फर्स्ट लेयर का फर्स्ट न्यूरॉन का इनपुट लेयर इनपुट वेक्टर, यहाँ पे ये क्या है वेट वेक्टर, इनिशियल वेट वेक्टर। तो इनिशियल वेट वेक्टर में जब ये पूरा जो चेंज ऑफ वेट्स है, चेंज ऑफ वेट इन फॉर द फर्स्ट न्यूरॉन के लिए जो वेट मैट्रिसेज हैं वो चेंज, उसमें जो चेंज है वो दिखाया है कि इससे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो जो W1 W2 W3 उसमें जो चेंज आया यहाँ से आया, देन जो पुराना जो वेक्टर है उसमें जब हम जो चेंज है उसको ऐड करेंगे, देन वी विल गेट दिस वैल्यू, ओके। दिस इज ओल्ड वेक्टर एंड दिस इज द टोटल चेंज इन द वेट वेक्टर। तो ये आ गया न्यू वेट वेक्टर इज दिस, ओके। अब नया वेट वेक्टर मिल गया हमको, तो नया वेट वेक्टर न्यू वेट वेक्टर इंटू न्यू वेट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द इनपुट मैट्रिक्स इनपुट वेक्टर। तो नया जो नेट आउटपुट न्यू नेट आउटपुट है वो कितना हो जाएगा, न्यू नेट आउटपुट हो जाएगा इतना, जो पहले 2.5 था अब
वो चेंज हो गया। ओके, यहाँ पे -1.948, ठीक है। यहाँ से फिर से कैलकुलेट कर लो, जब ये लास्ट में जो एरर है हमारी, जब ये एरर 0 आने लगेगी, देखो जब ये यहाँ पे एरर 0 आ जाएगी तब तक ये इटरेशन चलेगा। ओके, जब ये एरर 0 आ जाएगी, है ना, तब तक इटरेशन चलेगा और 0 पे बंद हो जाएगा। फिर जो भी वेट है वो वही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज, ये 0 हो जाएगा ये टर्म। तो जैसे अब अगर हम इसी में सेकेंड इटरेशन होगा तो क्या होगा, नेट आउटपुट ये होगा, फिर एफ डैश नेट बनाएंगे उसमें, फिर एफ डैश नेट से चेंज इन द वेट वेक्टर फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर जो पुराना वाला वेट वेक्टर है, मीन्स पुराना वेट वेक्टर मीन्स ये वाला है, इसमें फिर हम नया निकालेंगे। ओके, तो फिर वेट वेक्टर चेंज होगा। ओके, तो दिस इज द, देखो यहाँ पे इसने नए वाले नेट से फिर वही वैल्यू निकाला है, ये यहाँ नए वाले नेट से निकाला है, नए वाले वैल्यू से। ओके, न्यू वैल्यू से यहाँ निकाला, फिर यह -0.75, फिर एफ डैश नेट 0.218 आया, फिर इसने चेंज सेकेंड टाइम जो चेंज है वो निकाला, ठीक है, और फिर उसको यूज किया। अब जनरलाइज डेल्टा रूल है, इस समझ में आ गया क्या? स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं समझ में आती एक बार बुक देख लेना, ठीक है। सिंपल है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं है ना। एक बार देखोगे तो सही हो जाएगा, फिर इसी सब प्रॉब्लम से क्विज वगैरह भी डिपेंड रहेंगी। तो जनरलाइज डेल्टा रूल, तो जनरलाइज डेल्टा रूल में क्या है, ये एक टू लेयर नेटवर्क है, मतलब इसमें कितने, एक आउटपुट लेयर है, एक हिडन लेयर है और एक इनपुट लेयर है। ये बीच की लेयर है हिडन है। हमारे आउटपुट न्यूरॉन्स हो गए, ये न्यूरॉन आउटपुट है, यहाँ पे आउटपुट है, तो यहीं से डायरेक्ट हमको आउटपुट मिल रहा है, तो ये आउटपुट न्यूरॉन हो गए। ये यहाँ पे इनपुट न्यूरॉन हो गए, इनपुट नोड कह लो, ठीक है। और यहाँ पे जो है हिडन लेयर हो गई, ठीक है। ये एक्सेसिबल नहीं है हमारे लिए, हमारा इनपुट एक्सेसिबल है, जो फाइनल न्यूरॉन का आउटपुट है वहाँ एक्सेसिबल है। तो एक हिडन और एक आउटपुट। तो यहाँ पे जो बैक प्रोपगेशन लर्निंग कैसे हो रहा है, दिस इज थोड़ा अब इसको ध्यान से देखना, थोड़ा धीरे धीरे टफ हो जाएगा ये। तो यहाँ एफ नेट ले लिया, के मान लो कि लास्ट वाली जो है, यू कैन सी हियर द के इक्वल टू, ये फाइनल जो है वो के है, उसके पहले की जे है और उसके पहले की आई है। ओके, यहाँ पे ये आउटपुट एट केथ न्यूरॉन, ये उसका आउटपुट ये निकला, उसके पहले का न्यूरॉन का आउटपुट ओ जे है, ठीक है। यहाँ पे ओ जे हो गया, ओ जे 1, ओ जे 2, ओ जे 3, ओके 1, ओके 2, ओके 3, ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे आइथ लेयर हो गई, तो यहाँ पे क्या निकला, जैसे इसका यहाँ पे निकला फंक्शन के बाद, तो यहाँ आइथ लेयर में क्या हुआ, x1, x2, x3 ये बन रहा है। तो यहाँ पे जो ये सेकेंड लेयर में आउटपुट है वो क्या होगा, नेट आउटपुट एट केथ लेयर। ओके, एंड दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ आउटपुट फ्रॉम द प्रीवियस लेयर मल्टीप्लाइड बाय द वेट वेक्टर्स। देखो यहाँ पे प्रीवियस लेयर में क्या है, जैसे कि ये जो है ओ जे है, यहाँ से जो ओ जे निकला और ये वाला जो वेट वेक्टर है, ओके, तो के जे मतलब के ये हो गया और जे, तो इस केथ लेयर जो है और ओ जे जेथ लेयर के बीच में जो वेट मैट्रिक्स है वो डब्ल्यू के जे कहलाएंगे। तो ओ जे मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू के जे। ओके, तो यहाँ पे प्लस थीटा के एक बायस बनाया है, बायस भी ले लिया। तो ये जे लेयर में जो पूरा समेशन होता है, जे लेयर में मतलब 0 से लेके जितने भी
न्यूरॉन्स हैं, सपोज जेस लेयर में अगर 4 न्यूरॉन है तो 0 से लेके 1 तक यही ऐड होंगे। ओके, समझ में आ गया? ये न्यूरॉन्स की मतलब ये लेयर की संख्या है। ओके, और सभी के लिए ऐड होंगे। ओके, जितने उस लेयर में जितने न्यूरॉन हैं उसके लिए पूरा सम होगा ये। ठीक है, you understood or not? ऐसे ही हिडन लेयर के लिए निकाला है। अब हिडन लेयर के लिए भी निकाला, वही फार्मूला लगेगा, OJ इक्वल टू एफ नेट जे। ओके, तो चलो ये थोड़ा सा टफ है, इसको बाद में देख लेना। अब चूंकि ये प्रीवियस जो हमने बताया था अभी तुमको, डेल्टा लर्निंग रूल और विड्रॉ ऑफ लर्निंग रूल, उस पे बेस्ड एक चीज है तुम्हारे टॉपिक की, तो सिलेबस खत्म होने से पहले वो थोड़ा सा उसको स्टडी कर लो, 5 मिनट की बात है वो। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। ये एडाप्टिव लीनियर लीस्ट मीन एरिया स्क्वायर इज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग। तो इस लर्निंग प्रोसीजर को यूज करके इन्होंने एक एडाप्टिव लीनियर एलिमेंट का यूज वो किया है। दिस इज अ टाइप ऑफ परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ क्लासिफायर एंड नाउ व्हेन द क्लासिफायर इज ट्रेन्ड अकॉर्डिंग टू द एरर्स, सपोज दैट देयर इज अ रेफरेंस स्विच। ओके, अब हमने इसका रेफरेंस दिया कि यहाँ पे लर्निंग हो रही है, वी आर उसको सिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है, नेटवर्क को। तो हम पहले उसको सपोज -1 दे दिए। अब यहाँ पे एक जो एक्चुअल सिस्टम आ रहा है दैट इज कुछ भी है, -1 या +1 आ रहा है, उस कंडीशन में एक एरर बनेगी, दैट एरर इज यूज टू ट्रेन द दीज वेट्स। अब हमने दूसरे डेटा के लिए चेंज किया कि अब हम उसको +1 कर दिए। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट सैंपल डिफरेंट टाइम्स में हम उसको चेंज कर रहे हैं, अपने हिसाब से हम उसको पैटर्न उसको लर्निंग करा रहे हैं। तो दिस इज ए टाइप ऑफ लर्निंग सिस्टम। यहाँ से ये एरर जाएगी ईच टाइम द वेट्स विल बी ट्रेंड। सपोज कि हम इनपुट दिए हुए हैं, फर्स्ट में -1 दिए, सेकेंड में +1 दिए हैं और थर्ड में -1 दिए हैं, ये एक पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न हो गया -1 +1 +1, ऐसे डिफरेंट पैटर्न्स हमारे इनपुट्स में बदलते रहेंगे। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि कैसा भी पैटर्न बदले, इस पैटर्न के लिए +1 देना चाहिए, इस पैटर्न के लिए -1 देना चाहिए। तो हमने जब देखा कि हमारा ये पैटर्न है तो हमने रेफरेंस स्विच दे दी कि हाँ हमारा +1 होना चाहिए, उसके हिसाब से वेट 10 होना चाहिए। ठीक है, सपोज दैट मतलब यहाँ भी इनपुट आउटपुट का रिलेशन हो रहा है पूरा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द एडाप्टिव लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट मींस यहाँ पे जो फंक्शन है, एक्टिवेशन फंक्शन के पहले की का आउटपुट यूज किया गया है, सो दैट इज ए टर्म लीनियर। एंड एडाप्टिव मींस द वेट्स आर एडाप्टिव, सो एडाप्टिव लीनियर एलिमेंट, एडाप्टिव लीनियर, दिस इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क एंड दिस इज ए परसेप्ट्रॉन। ओके, जो क्लासिफायर है। तो अब जब भी पैटर्न चेंज होगा तो जैसे ही वो वाला पैटर्न देखेगा तो +1 या -1 आउटपुट दे देगा, जान जाए कि हाँ क्योंकि यहाँ पे देखो हम इसलिए -1 और +1 से उसको रेफरेंस स्विच दे रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि एक्टिवेशन फंक्शन का हम यूज नहीं ले रहे हैं और आउटपुट 1 या +1 या -1 के टर्म्स में ही होना चाहिए। तो हमेशा जो हम रेफरेंस लर्निंग दे रहे हैं उसको +1 -1 के टर्म्स में दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है, डिफरेंट पैटर्न्स के लिए वो वेट्स ट्रेन करेगा और जब भी वो पैटर्न मैच होंगे, ठीक है, जैसे कि -1 -1 +1, अब इस पैटर्न के लिए हमको पता है कि आउटपुट होना चाहिए +1। ओके, तो ये पैटर्न क्लासिफायर है कि मतलब सर्टेन पैटर्न्स आर इन दिस कैटेगरी एंड सर्टेन पैटर्न्स आर इन दिस कैटेगरी। कुछ +1 में है, की रेंज में है, +1 में है और दूसरी कैटेगरी है -1 सपोज। तो ये क्लासिफायर है, -1 +1 +1 में सपोज कि +1 है आउटपुट तो वेट्स ट्रेन हो जाएंगे। अब दूसरा इनपुट सेट है -1 -1 +1, उस कंडीशन में हमने दे दिया कि भाई हमारा टारगेट आउटपुट होना चाहिए -1, तो अब वो फिर से ट्रेन करेगा अपने वेट्स को।
तो जब भी वो -1 +1 होगा तो वहां पे वो आउटपुट हमेशा -1 ही देगा। तो दिस इज अ टाइप ऑफ एडाप्टिव लीनियर एलिमेंट। ऐसे ही when the large number of input these sets are used, suppose we have used this one element here, okay, and then we have put together this in a cascade manner। सपोज कि यहाँ से हमने इसको रख दिया एक, ओके, अब नहीं आ रहा है सर टाइम हो गया। टाइम हो गया। थैंक यू फॉर रिकॉलिंग मी। क्लास अटेंडेंस मैं ले रहा हूँ, कोई गया तो नहीं ना? ठीक है, जो गया हम नहीं जानते हैं, अटेंडेंस हम ले रहे हैं, ठीक है। और स्क्रीन हम अनशेयर कर देते हैं। सो एडाप्टिव लीनियर एलिमेंट अब देख लेना, इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। मेडेलाइन जो है वो इन्हीं का एक मल्टीपल, जैसे सिंगल लेयर और मल्टी लेयर होता है, उसी प्रकार से मल्टीपल एडेलाइंस को जब हम यूज करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? मेडेलाइन। ओके, सो देयर इज नथिंग मोर इन एडेलाइन एंड मेडेलाइन। तो हम ये रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहे हैं।